Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for those who are waiting for the Mendel's experiment. Actually, Mendel's was first scientist to try to participate in the function in the work of the inheritance and their heredity, mechanism of heredity, how do the factors, how do the genes transfer from one generation to another generation. Listen carefully. And he selected the Pisum sativum plant. In previous video lecture I have awared you many times, but your concept should be clear. The Pisum sativum, that is the garden pea plant. Many students are confused regarding the sweet pea plant or garden pea plant. So garden pea plant was selected by Mendel and their scientific name is Pisum sativum. So Mendel select the garden pea. The biological name is Pisum sativum, and it was the family Leguminosae, as you all know. So Mendel's experiment, totally Mendel's experiment based on the Pisum sativum or garden pea plant. You are confused regarding the garden pea plant. General pea in your home or the garden pea. स्वीट पी, गार्डन पी, बोथ आर द पी जैसे मटर दिखता है, मटर वही मटर ही है पी, ठीक है, उसी का साइंटिफिक नेम है गार्डन पी. सो डोंट बी कंफ्यूज रिगार्डिंग द गार्डन पी. अमेरिका का आदमी होमो सेपियंस, इंडिया का आदमी होमो सेपियंस. गार्डन पी मींस पाइसम, ठीक है, पी ही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा लीजिए. Mendel's overall experiment based on the Pisum sativum. No more plants selected by Mendel. Only garden pea plants were selected by the Mendel. Listen carefully. Actually, what are the reasons behind selection of Mendel's garden pea? First of all, they actually Mendels do not any kinds of Mendels are not belong to any kinds of universities, college, or having the lot of degree, and they are do not be, they are having any kinds of research or any kinds of research centers. So they are having Mendels are having the only their particular very short place that is known as the church for the particular religious, for the Christian religious. So Mendel all kinds of their all functions, that is Mendel's overall experiment perform in the boundary of church, and the basic reason of the pea selection is one of them. तो इसका हम कुछ लिस्ट बना दे रहे हैं, एग्जाम में पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंडल. तो अब अगला आइडिया क्या बनेगा? रीजन फॉर सिलेक्शन. रीजन फॉर सिलेक्शन क्या क्या बेसिक रीजन है. पॉइंट वन लिखिए, इजीली अवेलेबल. पहले तो ये बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल, ठीक है. बहुत सारे प्लांट इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन और भी प्रॉपर्टी इसमें आपको बताएंगे, ठीक है. सेकेंड है इजी टू कल्टीवेट. इसकी एग्रो फार्मिंग बहुत आसानी से किया सकता है, ठीक है. कॉमर्शियल पर्पस. अब अगर कोई पूछे कि अगर आप किसी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके ढेर सारी वैरायटी मिल जाए तो उसका करेंगे क्या? इसका सीधा सा आंसर है, अगर वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो उसका बहुत सारा रोल होगा. तो मेंडल्स ने इस चीज को भी ध्यान रखा कि हम किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट, किसी ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करें जिससे हमको ढेर सारी फ्यूचर में वैरायटी भी मिलती है, तो लोग ये ना कहें कि इसका एडवांटेज क्या है, कम से कम पी ही है हमारे पास कई तरह के. तो यहाँ पे कॉमर्शियल पर्पज है. फोर्थ है ये बाइसेक्सुअल है. अब बाइसेक्सुअल का पर्पज क्या होगा? जब ये बाइसेक्सुअल होगा तो हमको पॉलन ग्रेन्स ढूंढने कन्याकुमारी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है. हमको एक ही प्लांट में पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा दोनों मिल जाएंगे. बाइसेक्सुअल का एडवांटेज. फिफ्थ वन, द क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल. क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा to the same flower, the self pollination, and transfer of pollen grains from anther to stigma to the two different flowers or to the two different plants. So how it is possible? How the self pollination possible if the flowers or plants are bisexual? भाई जब उसमें ही pollen grains होगा, उसी में स्टिग्मा होगा, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा. तो ये प्लांट्स, पी प्लांट्स की खास बात थी, ठीक है. नेक्स्ट वन इज artificial pollination also possible.
आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आल्सो पॉसिबल। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके साथ अगर हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो वो सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। लेकिन पी के साथ ऐसा नहीं, उसके साथ आप आर्टिफिशियली ब्रश से पॉलन ग्रेन्स छिड़क दे, समय के पहले ही कवर अप कर दे, वो नेचुरली अपना ग्रो करता रहेगा, फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं पॉइंट्स जिसको हमको आपको बताना है। लिसन केयरफुली। शॉर्ट हाइट है, इसका जो साइज होता है वो शॉर्ट हाइट होता है, शॉर्ट हाइट। शॉर्ट हाइट का एडवांटेज क्या है, मान लो पॉलन ग्रेन छिड़कना तो हर बार जो है तुमको सीढ़ी लगाना पड़ता है। अगर मैंगो पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हर बार क्या करना पड़ता है, सीढ़ी लगाना पड़ता है और ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट हाइट प्लांट है इसलिए आसानी से उसी का पॉलन ग्रेन उसी को छिड़क दीजिए, बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा। ठीक है। 8 शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट लाइफ को लिखने का पर्पज ये कि बहुत सारे प्लांट्स जो है बाइनियल हो सकते हैं, पेरेनियल हो सकते हैं, माने उनमें फ्लावरिंग फिनोमिनन 50 इयर्स टू 100 इयर्स हो सकता है। ठीक है, 10 इयर्स तक हो सकता है। लेकिन इसमें साल में अगर कंडीशन ठीक है तो 3 महीने में सब कुछ खत्म इसका, मतलब सीडिंग, सिगलिंग और फ्लावरिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है। 9 मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अवेलेबल इन द पी प्लांट्स। ठीक है, एक ही प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, इसकी मैं लिस्ट बना दे रहा हूं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मींस क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, कुछ प्लांट छोटे हैं, कुछ प्लांट बड़े हैं। ठीक है, कुछ पॉड्स, उसके जो पॉड्स है उसमें भी वैरायटी, फ्लावर में भी वैरायटी, सीड में भी वैरायटी। तो इस बेस पे हम एक लिस्ट बना रहे हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। Actually, Mendel formed the 7 contrasting traits that need to know what are the 7 contrasting traits and what are their genotype and what are their phenotypes. इसकी लिस्ट में बना दे रहा हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। 7 contrasting traits selected by Mendel, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 contrasting traits Mendel ने पी प्लांट से कौन कौन से 7 contrasting traits सेलेक्ट किए थे, यानी कि कौन कौन से 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे जिनको उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव प्रॉपर्टी नजर आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। पहले तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं ताकि चीजें एकदम अप टू डेट हो जाए, क्लियर हो जाए। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर हो गया। अब ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप। फिर लिख देना है डोमिनेंट जीनोटाइप, डोमिनेंट, डोमिन लिख देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जीनोटाइप लिख देते हैं। ठीक है, जगह नहीं बचेगी, डोमिनेंट जीनोटाइप। फिर लिख दे रहा है रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप। और अगला क्या होगा, रिसेसिव जीनोटाइप, रिसेसिव जीनोटाइप। यानी कि हर एक फिनोटाइप का जीनोटाइप जरूर होता है, हर एक फिनोटाइप का एक जीनोटाइप जरूर होता है और उसमें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की लिस्ट बना दे रहे हैं। पॉइंट 1 प्लांट्स हाइट, प्लांट्स हाइट। सेकेंड सीड शेप। थर्ड सीड कलर, सीड कलर। पॉड शेप। 5 पॉड कलर। 7 द फ्लावर कलर एंड 6 फ्लावर कलर एंड 7 द फ्लावर पोजीशन। प्लांट्स हाइट, मेंडल ने रिकॉग्नाइज किया कि पी प्लांट में 2 तरह की हाइट होती है, एक टाल होता है, एक ड्वार्फ होता है। ठीक है, और बताया कि जब टाल प्योर हो, यानी कि दोनों जीन उसका कैपिटल हो और उसको प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करा रहा है, यानी कि
जीन्स जो ड्वार्फ का हो वो दोनों जीन स्मॉल हो, तो अगले जनरेशन में टाल ही टाल होंगे। तो इस बेस पे बताया कि टाल जो प्लांट है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हम डोमिनेंट में यहाँ पे लिखेंगे टाल, ठीक है, और इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, और रिसेसिव क्या हो जाएगा, डोमिनेंट जीनोटाइप। रिसेसिव जो है फिनोटाइप इसका क्या होगा, ड्वार्फ, ठीक है, और इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी। ये लिख देना आप। अब आते हैं सीड का शेप। सीड जो है आप मार्केट से खरीद के लाइए तो दो तरह का होगा, एक पिचका होगा इस तरह से, ठीक है, एक पिचका होगा और एक गोल होगा पूरी तरह से। तो मेंडल ने पाया कि अगर किसी सीड जो गोल वाला सीड है उसको जर्मिनेट करा रहे हैं और उसका एंथर पॉलन ग्रेन्स किसी रिसेसिव सीड्स वाले यानी पिचके हुए सीड्स को ग्रो करा के उस पे स्टिग्मा पे छिड़क रहे हैं, तो अगले जनरेशन में सब राउंडेड सीड आएंगे, सारे राउंडेड सीड वाले पी प्लांट ग्रो होंगे। तो यहाँ पे पी प्लांट में राउंडेड सीड क्या है, वो डोमिनेंट है, और रिसेसिव क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, पिचका होगा। तो यहाँ पे सीड शेप में क्या हो जाएगा, डोमिनेंट में राउंड, ठीक है, और डोमिनेंट का जीनोटाइप बताया कि कैपिटल आर। रिसेसिव फिनोटाइप में बताया कि रिंकल्ड यानी कि पिचका हुआ, लिख लीजिए कॉपी में अपने हिसाब से, रिंकल्ड प्लस पिचका हुआ और स्मॉल आर। एक चीज जान लीजिए कि जिस टर्मिनोलॉजी में हम डोमिनेंट का यूज करते हैं उसी टर्मिनोलॉजी में रिसेसिव का भी यूज करेंगे, लेकिन उसको स्मॉल लेटर में कर देंगे। क्लियर है ना? अब ऐसा नहीं कि वो रिंकल्ड है तो डब्ल्यू यूज करेंगे, हमने ऑलरेडी डोमिनेंट को आर यूज कर दिया तो उसके लिए स्मॉल आर होगा, ठीक है। अब आते हैं सीड कलर। सीड दो कलर का होता है। आपके यहाँ मटर होता होगा तो सूखने के बाद दो कलर के सीड होंगे, एक मटर पीले रंग का होगा जिससे दाल बनती है, और एक मटर हरे रंग का रह जाता है। तो जो हरा रंग है ना वो उसका रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीड कलर में येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन जो होगा वो रिसेसिव होगा। येलो के लिए डोमिनेंट जीनोटाइप यानी येलो के लिए जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई बनेगा। क्लियर है ना? अब आते हैं पॉड से। पॉड क्या होता है भाई, मटर की फली। आप ऐसे मटर ले आते हैं मार्केट से या आपके यहाँ बाजार में होता है, ये पूरा खोल सहित, फ्रूट सहित, यानी इसके अंदर सीड वगैरह है वो अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा जो फ्रूट होता है इसका मटर का, वही उसके पॉड बोले जाते हैं, पूरे छिलके सहित सीड को बोला जाता है पॉड, ठीक है। तो पॉड दो तरह का होगा, एक फूला हुआ होगा और एक पिचका होगा, मटर के साथ चिपका होगा। तो चिपका होगा उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड और जो फूला होगा उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉड शेप में आ जाएगी, इसमें आ जाएंगे इन्फ्लेटेड और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो इन्फ्लेटेड में लिख दिया तो यहाँ पे कैपिटल आई कर दिया और वहां पे स्मॉल आई कर दिया, तो ये आपको क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्लियर है ना? अब आते हैं पॉड कलर। पॉड कलर आप खेत में जाकर के पता कर पाएंगे, नेचुरल उसके स्टेज में जाकर के पता कर पाएंगे नेचर में कैसा है। पॉड कलर दो तरह का होता है, ठीक है, एक ग्रीन होता है और एक पहले से येलो कलर का होता है। यहाँ सीड के कलर का उल्टा हो जाएगा, सीड में येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था, और पॉड का जो कलर होता है छिलके का रंग वो पहले से अगर येलो है तो वो रिसेसिव है, ज्यादा आपको ग्रीन ही दिखने को मिलेगा तो वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो पॉड कलर में क्या हो जाएगा, डोमिनेंट में हो जाएगा ग्रीन और रिसेसिव में हो जाएगा येलो, और इसके लिए कैपिटल जी हो जाएगा और इसके लिए स्मॉल जी हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे आपको दिक्कत भी रहेगी। अब आते हैं फ्लावर कलर। फ्लावर दो तरह का बनता है, पी में फ्लावर दो तरह का बनता है, एक वायलेट कलर का, एक व्हाइट कलर का। वायलेट कलर के फ्लावर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, रीजन क्या, वायलेट डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वायलेट और व्हाइट, दो कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो वायलेट के लिए आप जीनोटाइप क्या बनाने वाले हैं, कैपिटल वी, और व्हाइट के लिए क्या बनाने वाले हैं, स्मॉल वी। ये आपको जानना, ये सीखना भी है, ठीक है। अब आते हैं फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन मींस क्या होता है, फ्लावर दो पोजीशन पे प्लांट्स के साथ खिलता है। प्लांट के साथ फ्लावर दो पोजीशन पे खिलता है, एक एक्सियल और एक टर्मिनल। एक्सियल मींस एक या तो टिप पे या फिर टर्मिनल मींस एक किनारे साइड में कहीं पे, ठीक है। तो अगर टिप पे फ्लावर है, लेटरल नहीं है, तो उसको बोलेंगे एक्सियल, अगर वो किनारे है तो टर्मिनल। तो जो एक्सियल है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन फ्लावर का, वो डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे एक्सियल फ्लावर क्या हो जाएगा, वो डोमिनेंट है
और कैपिटल टी, कैपिटल ए और टर्मिनल फ्लावर क्या हो जाएगा, टर्मिनल फ्लावर स्मॉल ए, ये क्या हो जाएगा, उसका रिसेसिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स and Mendel one by one select them for their experiment. In first case, he selected the height of plants, that is, he performed the experiment by taking the tall plant and a pure dwarf plants and cross them together in order to find the progeny in next generation up to F2 generation. Without F2 generation, you could not get, you are not able to get the particular traits and their conclusion, whatever the dominant or recessive. In next video lecture, I will describe you the Mendel's experiment and their conclusions. Keep in mind, the Mendel's experiment overall based on Pisum sativa, which will be discussed in this video lecture, which are discussed in this video lecture, and what are the reason behind the fact why he selected the plants for pea plants, because of having the different regions, they are bisexual, they perform the cross and self type of pollination and everything that is over in this video lecture. What are the 7 contrasting traits? This should be your very important points regarding that. The 7 contrasting traits selected by Mendel are, these are the 7 contrasting traits. From the plant side to the flower position, these are 7 contrasting traits, and you can perform frequently by taking any of them. That is, if you are going to perform the experiment, whatever the result of dominant and recessive, you may take the plant's flower position or the pod shape position, anything. There is no foundation to take whatever the plant's height only. You can take any kinds of contrasting trait in order to get the proper result and interesting result. In next video lecture, I will describe you the Mendel's experiment and their principle. Thank you.